شاہدرہ کے علاقے میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد کی ہلاکت کا واقعہ۔ جاں بحق ہونے والے چاروں افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 45 سالہ ندیم، 25 سالہ نعمان شامل ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 26 سالہ اویس اور 35 سالہ الماس بھی شامل ہیں۔ چاروں افراد دکان کی چھت پر نصب لوہے کا بورڈ اتار رہے تھے۔ لوہے کا بورڈ اتارتے ہوئے بجلی کی تاروں کو ہاتھ چھو گیا، جس سے واقعہ پیش آیا۔ بورڈ اور بلڈنگ میں کرنٹ آنے سے چاروں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پیرا فورس کی جانب سے شہریوں کو دکان پر لگے بورڈ اتارنے کا کہا گیا ہے۔ شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ کاریگر نہ ملنے اور FIR کے خوف سے دکاندار بورڈ اتار رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ شاہدرہ کے علاقے میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد کی ہلاکت۔ جاں بحق ہونے والے چاروں افراد کی شناخت ہو چکی ہے، جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں 45 سالہ ندیم، 25 سالہ نعمان شامل ہیں۔ اسی طرح 26 سالہ اویس اور 35 سالہ الماس بھی شامل ہیں۔ چاروں افراد دکان کی چھت پر نصب لوہے کا بورڈ اتار رہے تھے۔ لوہے کا بورڈ اتارتے ہوئے بجلی کے جو تار تھے ان کو ہاتھ چھو گیا اور بورڈ اور بلڈنگ میں کرنٹ آنے سے چاروں افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پیرا فورس کی جانب سے شہریوں کو دکان پر لگے بورڈ اتارنے کا کہا گیا۔ شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ کاریگر نہیں ملے اور FIR کے خوف سے دکانداروں نے بورڈ خود ہی اتارے، جس کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ دیدیا روڈ لدھر پنڈ میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دبنے کے باعث 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 زخمی ہوا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکال لیا۔ ریسکیو ذرائع کا یہ بتانا ہے۔ کیسے واقعہ پیش آیا، کیا تحقیقات کی گئی؟ ہمارے ساتھ عابد چودھری ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی عابد چودھری۔ جی بالکل، یہ ریسکیو کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بیتیاں روڈ ہے جہاں پر لدھڑ گاؤں میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی ہے اور ملبے تلے دبنے کے باعث 2 افراد جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ ریسکیو نے ملبے تلے دبنے والے تمام افراد کو نکال لیا ہے۔ اس والے سے ریسکیو کے کہنا ہے کہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دے گا، جبکہ جاں بحق ہونے والی کی لاشیں پولیس کے حوالے کر دی ہیں۔ پولیس کے اس والے سے کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 25 سالہ عادل اور 45 سالہ گوگا مسیح کے نام سے، البتہ لاشیں قبضہ میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد چودھری۔ ابھی آپ کو بتائیں، ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کریم بلاک تا موٹر وے شارٹ روٹ کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ کا منصوبے کی حتمی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرنے کا فیصلہ ہے۔ LD اور نسپاک کی منصوبوں پر بریفنگ بھی مکمل، پریزنٹیشن سیکرٹری ہاؤسنگ کو پیش۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کا منصوبوں ابتدائی ڈیزائن پر اطمینان کا اظہار۔ محکمہ ہاؤسنگ نے منصوبوں کی منظوری کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ سے وقت مانگ لیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ منصوبوں کو وزیر اعلیٰ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ گلبرگ تا موٹر وے 100 ارب لاگت سے BOT کی بنیاد پر ایلیویٹڈ ایکسپریس وے تعمیر کا یہ منصوبہ ہے۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر 6 مقامات پر انٹری ایگزٹ کے لیے ایلیویٹڈ ریمپس تعمیر کیے جائیں گے۔ حکومت BOT پر دیکھ کر ٹول ٹیکس کے ذریعے 25 سے 30 سال میں لاگت پوری کرے گی۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ در نایاب ہیں۔ جی در نایاب۔ بالکل، پنجاب حکومت نے لاہور شہر کے لیے 2 بڑے منصوبوں کے پرپوزل تیار کیے تھے اور ان کو دوبارہ سے الائیو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اس فیصلے کے بعد سیکرٹری ہاؤسنگ کی جانب سے یہ باقاعدہ انسٹرکشنز دی گئی LDA کو اور نیسپاک کو کہ اس پہ پرپوزلز لائے جائیں۔ اس میں ایک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے تھا اور دوسرا کریم بلاک تھا موٹر وے شارٹسٹ روٹ تھا، جس پر کام کرنے کی جو ہے بات کی گئی تھی۔ یہ ماضی میں بھی منصوبے رہے ہیں اور گزشتہ 8-10 سالوں سے ان پہ کام ہوتا رہا فردن اس پہ، لیکن اس کو منطقی انجام تک یعنی کہ اس کو ایگزیکیوشن تک لانے کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی رہی، اور جب رکاوٹ آتی رہی یا تو حکومت تبدیل ہو گئی یا پھر نئی حکومت نے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ اب اس پہ فائنلی دوبارہ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان پہ کام شروع کیا جائے۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے جس پہ 5 ارب روپے کی لینڈ ایکوزیشن کی جا چکی ہے، اس کا بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اور اب صرف اس کا سٹرکچر ڈیزائن اور اس کے حوالے سے اس کے جو روٹ پلان ہے اس پہ کام کرنا تھا۔ اسی طرح جو کریم بلاک ہے اس پہ بھی روٹ ڈیزائن پہ کام ہو چکا تھا اور نگران حکومت کے دوران بھی اس پہ منظوری دی جا چکی تھی، لیکن پھر سیٹ اپ ختم ہوا اور اب پرماننٹ گورنمنٹ نے بھی اس پہ دوبارہ کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور امین مینگل کو LD اور نیسپاک کی جانب سے بریفنگ دی جا چکی ہے دونوں منصوبوں پہ۔ ملتان روڈ پہ انڈر پاس یا فلائی اوور کے ذریعے ٹریفک انٹرسیپٹ کی جائے گی اور موٹر وے پہ ایک نیا روٹ نکالا جائے گا۔ ان دونوں پروجیکٹ پہ پرپوزل تیار ہیں، ڈیزائنز تیار ہیں اور اس پہ تخمینہ لاگت کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب حتمی منظوری حکومت پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ دیں گی آئندہ 1 سے 2 روز کے اندر۔ بہت شکریہ در نایاب۔
वफाकी हुकूमत का बिजली के बिलों की मद में डिजिटल मरदम शुमारी करने का फैसला। लेस्को समेत तमाम कंपनीज को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए मरासला भिजवाया गया है। कंपनियों को थर्ड पार्टी के जरिए डिजिटल मरदम शुमारी की हिदायत भी जारी की गई हैं। डिजिटल मरदम शुमारी में सार्फिन के कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर्स का रिकॉर्ड लिया जाएगा। घरों पर नस्ब मीटर्स की तादाद भी रिकॉर्ड में शामिल है। शाहिद नदीम सिपरा से इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे। जी शाहिद सिपरा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों की मद में डिजिटल मरदमशुमारी करवाने का फैसला किया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक मरासला अरसाल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि डोर टू डोर सर्वे किया जाए और सार्फिन का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। इसी मरासले में जो कहा गया है कंपनियों को कि थर्ड पार्टी के तहत ये तमाम प्रोसेस और डिजिटल मरदमशुमारी को मुकम्मल किया जाएगा। सबसे पहला जो रखा गया है कि सार्फिन का कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल किया जाएगा और उसका सही नंबर दर्ज किया जाएगा। उसके साथ ये कहा गया है कि उस घर में रहने वाले जितने भी अफराद हैं उनके नाम पर जो कनेक्शंस वहाँ नस्ब हैं उन तमाम का रिकॉर्ड अलहदा मुरतब किया जाएगा। और अगर वो मालिक मकान के नाम पर कनेक्शन चल रहा है या फिर किरायादार ने अपना मीटर लगवा रखा है तो दोनों सूरतों में इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन मुरतब किया जाएगा। इसके साथ ये भी कहा गया है कि सार्फिन और किरायादार का मोबाइल नंबर हासिल किया जाएगा जो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। और बिलखसूस सबसे अहम पॉइंट ये रखा गया है कि उस घर में या किसी भी इमारत में इस्तेमाल होने वाले टैरिफ को लाजमी देखा जाएगा कि टैरिफ की वायलेशन तो नहीं की जा रही, कहीं घरेलू की जगह कमर्शियल और कमर्शियल की जगह इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल की जगह कोई और टैरिफ तो नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो ये अब मरासला कंपनियों को भिजवाया गया है। लेस्को के पास भी आ गया है। थर्ड पार्टी के जरिए आइंदा चंद रोज में इस डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज किया जाएगा और तमाम सार्फिन का टैरिफ, कौमी शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर की बुनियाद पर रिकॉर्ड मुरतब करके वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। पंजाब अपोजिशन के 26 अरकान के लिए बुरी खबर है। अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली का मामला एक मरतबा फिर सर उठाने लगा है। नून लीग अरकान असम्बली का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की रूलिंग को चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त दी जाए या हाई कोर्ट में लीगी अरकान की वकला से मुशावरत जारी है। राउदुलशाद हुसैन इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, अपोजिशन के वो तमाम 26 अरकान जो कि मुअत्तल किए गए थे और उनके खिलाफ लीगी MPs की जानिब से दरख्वास्तें नाअहली के लिए भेजी गई थी स्पीकर को, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो रूलिंग भी दी। ताहम अब उनके लिए बुरी खबर है और बुरी खबर ये है कि लीगी अरकान असम्बली जिनकी दरख्वास्तों को स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुस्तरद किया था उन लीगी अरकान का अब जो है वो स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करने का फैसला सामने आया है। और इस हवाले से पूरी जो तैयारी है वो की जा रही है। पिटीशन जो है वो चैलेंज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल की जाए या सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में। इस हवाले से मुशावरत का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आपको बताएं कि एक दरख्वास्त ऐसी थी जो कि लीगी MPs जिनमें इफ्तिखार हुसैन चच्चड़, अमजद अली जावेद और मलक अहमद सईद की जानिब से दी गई थी। इस दरख्वास्त को स्पीकर ने मुस्तरद तो किया लेकिन इन अरकान ने जो है वो स्पीकर के इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। और इस हवाले से उनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि इसी तरह की दरख्वास्त पर 2017 में मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से फैसला दिया गया था और उस फैसले की रोशनी में जो है वो फिर जो है वो नाअहल भी किया गया था मियां नवाज शरीफ को और उसमें दीगर पिटिशनर्स भी शामिल किए गए थे। ताहम अब अदालत को फैसला करना है कि वो पिटिशन, वो फैसला दुरुस्त था या जो अब इनकी जानिब से लीगी MPs की जानिब से जो दरख्वास्त जमा कराई गई है ये फैसला दुरुस्त है। आईनी मामले को जो है वो मंतकी अंजाम को पहुंचाना चाहते हैं, किसी को नाअहल कराना नहीं मकसद। इसमें सिर्फ जो है वो आइन की दुरुस्तगी और कानून की दुरुस्तगी चाहते हैं कि या तो नवाज शरीफ के खिलाफ दिया गया फैसला गलत करार दिया जाए और अगर वो गलत नहीं है तो फिर इसको भी एक्सेप्ट किया जाए और इन अरकान की भी नाअहली जो है वो उसी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत जो है वो। NA 129 ज़िमनी इलेक्शन की बात करें, कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जारी है। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। क्रिकेट हाउस जेल रोड में कागजात नामजदगी जमा किए जा रहे हैं। रिटर्निंग अफसर NA 129 उस्मान
غنی को कागजात जमा करवाए जा रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, NA 129 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। उसके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर उस्मान गनी क्रिकेट हाउस के अंदर उनको कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। अब तक 86 से ज़ायद अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज मियां नोमान और महक इश्तियाक ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जबकि राना मशहूद कुछ ही देर में यहाँ क्रिकेट हाउस पहुंचेंगे और कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फरखत नूर के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जबकि आसिफ महमूद नागरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनकी जानिब से कागजात नामजदगी कुछ ही देर में जमा करवाए जाएंगे। क्रिकेट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कागजात नामजदगी किसी ने जमा नहीं कराए। ज़राए का यह कहना है कि हमाद अजहर, उनकी वालदा और उनकी अहलिया की जानिब से 3 अफराद के कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा करवाए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का भी ऐलान कर चुकी है, लेकिन कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। इस वक्त मैं क्रिकेट हाउस में ही मौजूद हूँ। यहाँ पे उम्मीदवारान मुख्तलिफ पार्टीज के पहुँच रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवारान पहुँच रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और आज इसका आखिरी रोज़ है, जिसके बाद 22 अगस्त तक अपील ट्रिब्यूनल तमाम अपीलों पर फैसला करेगा। 16 अगस्त तक रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, जिसमें 22 अगस्त तक फैसले आएंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों के नामों की रिवाइज जो है वो लिस्टें शाया की जाएंगी, जबकि 25 अगस्त तक उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और 26 अगस्त को NA 129 के हतमी उम्मीदवारान को उनके निशानात जो है इलेक्शन के लिए वो अलॉट किए जाएंगे, जिसके बाद 18 सितंबर को NA 129 के अंदर इलेक्शन मुनक्किद होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। अभी आपको बताएं, बाजारों में चीनी की सूरत हाल प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के दावों के बरक्स है। 173 रुपए फी किलो सरकारी निर्ख पर चीनी मुतादिद जगहों पर दस्तयाब नहीं है। गली मोहल्लों में छोटी दुकानों से चीनी गायब हो गई है। मुतादिद इलाकों में चीनी मुकम्मल तौर पर नायाब है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है, कलीम अख्तर से जानेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, चीनी की दस्तयाबी और इसकी कीमत के हवाले से पंजाब हुकूमत और प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो ज़मीनी हकाइक से बिल्कुल बरक्स दिखाई देने लगे हैं। मार्केट के अंदर जो चीनी है वो मौजूद नहीं है और जबकि प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर ये दावे किए जा रहे हैं कि इतने टन जो चीनी है वो मार्केट के अंदर सप्लाई की जा चुकी है, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल बरक्स है। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से 14 अगस्त तक जो परचून कीमत है चीनी की 1 किलो 173 रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो छोटी गली मोहल्लों में दुकानें स्पेशली वहां पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर एक दुकान के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, ग्राहक भी मौजूद है। जरा उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि चीनी इनके पास दस्तयाब है कि नहीं, इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप दुकान के यहाँ पे मालिक है, तो जो चीनी है वो आपके पास मौजूद है, अगर है तो फिर किस कीमत पे फरोख्त की जा रही है? मौजूद ही नहीं है, चीनी वाले आ ही नहीं रहे। जो होलसेल हमें करते हैं, जो डीलर आते हैं चीनी वाले, वो आ ही नहीं रहे। कस्टमर काफ़ी आते हैं और जो आते हैं पहले हमने सेल कर रहे थे, जब से उसके हाथ से ज़्यादा उसकी कीमत हुई है ना, तब से नहीं सेल कर रहे। बिल्कुल, इनकी जानिब से ये बताया गया है कि जो चीनी है वो दस्तयाब नहीं है। बात करें मौसम की, शहर में हवाएं चलने से हब्स और गर्मी का एहसास बढ़ गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, समरा फातिमा से बात करेंगे। जी समरा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो सुबह जहां आसमान पर बादलों का बसेरा था और सूरज और बादलों की आंख मचोली जा रही थी, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आसमान पर जो है वो सूरज जलवागर हो चुका है और अपनी तपिश बरसाने में जो है वो मुकम्मल तौर पर मसरूफ है और गर्मी, हब्स और घुटन का एहसास जो है वो फिर से बढ़ गया है। सुबह जहां जो है वो मौसम खुशगवार महसूस हो रहा था, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हवाएं भी चल रही हैं तो वो भी गर्म महसूस हो रही हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 41 डिग्री तक हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 और इसी के साथ साथ कम से कम जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 70% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। सुबह जहाँ 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही
थी, अब हवाओं की रफ्तार भी कम हो चुकी है और अगर हवाएं चल भी रही हैं तो वो बिल्कुल भी मौसम को खुशगवार करने का बायस नहीं बन रही। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज दिन भर सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी रहेगी। कभी सूरज जलवागर होगा, कभी बादल जो है वो नजर आएंगे, लेकिन फिल वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शहर लाहौर को जो है वो सूरज ने अपनी लपेट में ले रखा है और वो आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिश की भी पेशन गोई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आज भी शहर में 40 से 50% तक इम्कानात हैं कि बादल बरसे, लेकिन फिल वक्त जो है वो ऐसा कोई भी इम्कान बाहर जो है वो महसूस नहीं हो रहा और ना ही नजर आ रहा है। और साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शाम के औकात में ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है कि जो मौसम को जो है वो कुछ बेहतर कर सकती हैं। बारिशों के पेश नज़र जो है वो 8 अगस्त तक बारिशों की पेशन गोई की जा रही है, तो ऐसे में जो है वो दरियाए रावी और इसी के साथ साथ अतराफ में जो नदी नाले हैं वहां पर जो है वो तुगयानी का भी खदशा है और इसी के साथ साथ दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा।